सो हेलो गाइस, इट्स योर बॉय लक्ष्य एंड स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में, नए वीडियो में। हम फिलहाल अभी हैं NIT रायपुर के मेन गेट पे एंड ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मोटिव को लेकर। हमारे कॉलेज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, ऑर्गन डोनेशन कैंप, यानी कि ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कैंप किया जा रहा है। हॉस्पिटल से कुछ डॉक्टर्स आ रहे हैं इस अवेयरनेस को ड्राइव करने के लिए। पर्सनल स्टोरी है। I lost my brother due to kidney failure. Life after death, and that is possible with the organ donation. जैसे आप जानते हैं कि ऑर्गन डोनेशन से बहुत सारे लाइफ्स को बचा सकते हैं, ताकि लोगों को अवेयरनेस आ सके कि ऑर्गन डोनेशन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। तो फिलहाल अभी चलते हैं अपन कॉलेज के अंदर पे एंड देखते हैं कैसा ये इवेंट निकल के आता है। Why don't you just tell me everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. Why don't you just tell me everything could be so simple, but you want to make it difficult for yourself, for yourself, for yourself, for yourself, for yourself. I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away. निश्चित होगा प्रबल समर्थन अपने सत्य विचार का, अपने सत्य विचार का। गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। I will take your heart, count the time of love until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. I guess we will split our ways. मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर 2 घंटे के भीतर आपके ऑर्गन्स निकाल लिए जाएँ तो किसी की जान बचा सकते हैं, आपकी आँख। तो हम उसको इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर हमारी मृत्यु भी होती है तो हमारी मरने के बाद ही हमारी आँखें देख सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा नोबल कॉज है और हमें इसके लिए आना चाहिए और डेफिनेटली काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। जैसे हमारे बहुत सारे साथी लोग एम्स में जाकर उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट किया हुआ है। वंस अगेन सहयोग NIT रायपुर, लेडीज़ क्लब, रामकृष्ण केयर, इन सभी संस्थाओं का NIT रायपुर की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ कि दे हैव ऑर्गेनाइज दिस वंडरफुल प्रोग्राम्स, वंडरफुल अवेयरनेस प्रोग्राम। हम जब भी अपनी डेथ के बारे में बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स शुरू से बोलते रहते हैं अरे डेथ के बारे में बात करते हैं, एंड दैट्स द फैक्टर विच हैज एक्चुअली लिमिटेड द ऑर्गन डोनेशन बिकॉज नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट देयर डेथ, बट एक्चुअली डेथ इज द रियलिटी. What if we can live even after death? And that's the point of organ donation. Life after death, and that is possible with the organ donation. That if you donate organs after your death, you are still living. God has made our organs actually immortal. So there are lots of organs which can be reused again and again if that can be retrieved at the right time and reused in some patients. One person can save 8 lives at one time. In India, if we want to donate organs, or suppose I am dying, I am in ICU. So because at that time I am not able to take decision because I am already lying in the ICU. So whosoever is related to me, either me, my wife, my parents, they can take decision for donating organs. The government of India has done a tremendous job. Now, if you take a pledge that is linked with Aadhaar card. So in hospitals, whenever you are admitted, always Aadhaar card is needed, and that is linked with Aadhaar card. Anybody can know that this person during their lifetime has pledged or not, and if he has pledged, then he can donate. We have 2 kidneys, we have 1 liver, we have a pancreas which can be divided. So 1 kidney you can give to some relative, the part of liver can be divided and given to some relatives. The part of pancreas can also be transplanted.
But these are the donations are done only in case of nearby relatives. So by the law of organ transplant, it is possible to donate a part of liver because the liver has the capacity to regenerate. So suppose around 50% of the liver is removed, the another 50% will regenerate itself. So in both, in the donor as well as the recipient. So thereby the living donation is possible. But that's not possible with the heart because we have only one heart. We can't give, apart from the love stories, the person who has like brain dead, those people can give heart, lung and other organs. आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान के विषय में बात करने हेतु उपस्थित है। अंगदान के विषय में जागरूकता का अभाव, इसी जागरूकता के अभाव को दूर करने के लिए 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। ऑर्गन डोनेशन की तरफ आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय पर विचार विमर्श करना चाहिए ताकि हमारा देश भी बाकी देशों की तरह ही इस विषय पर भी अत्यंत ही आगे बढ़ सके। कि समटाइम्स कुछ पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अगर हम ऑर्गन डोनेट करेंगे तो हम अगले जन्म में ऐसे हो जाएंगे, हम अगले जन्म में वैसे हो जाएंगे। मेरे रिलेटिव ने भी मुझे सेम बात की थी कि अगर हम लोग आई डोनेट कर देते हैं तो अगले जन्म में हम ब्लाइंड होंगे। मैंने उनसे पूछा हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। मैंने कहा आप अगले जन्म में ब्लाइंड होंगे या आपको पता है? क्या आप इसके पहले जन्म में क्या किया आपको पता है? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने बोला इसके 2 जन्म पहले आपको उसने आपको पता है? उन्होंने बोला नहीं। तो मैंने कहा जब पिछले 3 जन्म का आपको आइडिया नहीं है तो आने वाले जन्म के बारे में आपका आइडिया कैसे हो सकता है? हम एक छोटी सी कम्युनिटी रन करते हैं सुमित फाउंडेशन और मेरा एक हेल्थ केयर स्टार्टअप है जीवनदीप, जिसमें हम लोग ऑर्गन फेलियर प्रिडिक्शन पे काम कर रहे हैं। सुमित फाउंडेशन की स्टोरी बस इतनी है, मेरी पर्सनल स्टोरी है। आई लॉस्ट माय ब्रदर ड्यू टू किडनी फेलियर, जहाँ भी मोस्ट पॉसिबल उसका ट्रीटमेंट हो सकता था हमने हर एफर्ट लगाया। तो सुमित की मेमोरी में हमने सुमित फाउंडेशन स्टार्ट किया था। वर्ल्ड में 218 कंट्रीज है, उसमें सिर्फ 92 कंट्रीज में ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप सोचिए, उसमें से एक इंडिया है। मेरा ये कहना है कि अगर हम इसे प्रैक्टिकल अप्रोच बनाएंगे, ऑर्गन के लिए प्लेस करेंगे, ऑर्गन डोनेट करेंगे, तो यकीन मानिए जो भी नियर डियर जिसकी भी आपके यहाँ डेथ हो रही है वो हमसे दूर नहीं जाएगा, बल्कि ऑर्गन डोनेशन एक ऐसा मौका है उसको दूसरे के दिलों में जिंदा रखने का। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऑर्गन डोनेशन के लिए जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हम जाने से पहले किसी की तो जान बचा पाएं। यकीन मानिए बहुत ईजी है और इंडिया पहले से बेटर कंडीशन पे है, लेकिन अगर आप लोगों ने साथ दिया तो जो मैंने गैप बताया था कि इंडिया में हर साल 40 लाख से ज़्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 12 से 15 हज़ार ऑर्गन ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं क्योंकि अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉस्ट, बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं। तो अगर आप लोग आगे आएंगे, ये कम्युनिटी आगे बढ़ेगी, तो आप यकीन मानिए हम इस गैप को धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक हम कम कर पाएंगे। आप लोग आगे आ जाइए। ऑल ऑफ यू लर्न दिस एक्टिविटी, कम फॉरवर्ड। What is the aim of basic life support? Just the aim is to save life. तो बेसिकली बेसिक लाइफ सपोर्ट का मतलब ये है कि हमको आपको जानना है कि किसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है। क्या हमको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है इस समय? हाँ या ना? किसको जरूरत है? कोई भी आदमी, कोई भी मरीज अगर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है वहां उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है? सीन सेफ्टी देखना। सबसे पहले आपको अपना सुरक्षा भी देखना है। आप किसी को हेल्प करने जा रहे हो तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपकी सुरक्षा। किसी बीच रोड में एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? किसी के हेल्प से उनको बीच रोड से साइड में लेके आना है। ठीक इसी तरीके से किसी भी सिचुएशन में अगर ऐसा सब आता है तो आपको सबसे पहले सर्वे करना है सीन का। अगर वो ओके है देन यू गो अहेड। जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है ना, उसका बेसिक फंडा क्या है? टाइम का। आप सोचो टाइम कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे स्ट्रोक पेशेंट मतलब किसी मरीज को लकवा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? एक जगह आदमी बैठे अचानक से वो बात चुप कर रहा, वो लड़खड़ाने लगा। जो नॉर्मल बात कर रहा, नॉर्मल बात नहीं कर पा रहा। एक तरफ उसका चेहरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक हाथ जैसे उठा रहा वो नीचे गिर जा रहा, मतलब उनका कंट्रोल नहीं रहा एक तरफ बॉडी का कोई भी एक पार्ट। तो इसमें 2 तरीके का स्ट्रोक होता है बेसिकली, एक हेमरेजिक और एक इस्कीमिक।
मतलब कि एक हो गया कि ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है, किस वजह से नहीं मिल पा रही है, उसकी नस में कोई ब्लॉकेज आ गया। दूसरा क्या होता है कि उनका नस का फट जाना, जिसको हम ब्रेन हैमरेज बोलते हैं। बेसिकली ये किसमें कॉमन है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में ये बहुत कॉमन है। अगर डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंट है और बेसिकली आप देखोगे अर्ली मॉर्निंग या स्ट्रेस का काम कर रहे हैं, जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ पे ये चीजें होती हैं। तो टाइम का इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम टाइमली एक्ट करें और अगर मरीज को टाइमली दवाई मिल जाती है तो उससे क्या होगा कि मरीज का जो ब्रेन डैमेज, ब्रेन सेल्स जो डैमेज हो रहा है, उसको हम मैक्सिमम बचा सकते हैं। अगर मरीज स्ट्रोक या लकवा लगने के 3 से 4.5 घंटे के बीच में अगर अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन अस्पताल आपको कहाँ पहुंचना है, वहां पर जहां पर सीटी स्कैन की सुविधा हो। अगर सीटी स्कैन की सुविधा बहुत दूर है तो सबसे पहले आप लोकल जो भी सबसे नजदीकी अस्पताल आप ट्रीटमेंट लो और वहां उसके बाद आप तुरंत स्विच करो स्टेबलाइजेशन के बाद, जहां पर सीटी स्कैन की सुविधा हो। क्यों सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सीटी स्कैन से हमको ये समझ में आएगा कि वो नस फटा है, ब्रेन हैमरेज है या इस्कीमिक स्ट्रोक है। 100 में से 87% केसेस जो होते हैं वो इस्कीमिक स्ट्रोक होते हैं। ओनली 13% केसेस जो होते हैं वो हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं। तो हमको बस सीटी स्कैन देख करके ये रूल आउट करना होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है। तो इसीलिए हमारा पहला टारगेट रहता है, अगर मरीज 2-3 घंटे के अंदर जितना जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचता है और जितनी जल्दी उसको दवाई मिलती है, उतना अच्छा उसका रिकवरी का चांस रहता है दोनों केसेस में। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। हार्ट अटैक क्या होता है? आपको छाती में दर्द होना। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि आपका हार्ट का बंद होना। अगर छाती में दर्द होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली इंटरवीन करते हो, मतलब कि अगर छाती में दर्द होने से अगर आधे घंटे से 90 मिनट के अंतराल में अगर आप अस्पताल पहुंच जाते हो, तो अगर आप उसका इलाज ले लेते हो, तो वैसे कंडीशन में, क्योंकि हार्ट मसल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। जो हार्ट मसल डैमेज हो जाते हैं दैट इज इरिवर्सिबल, मतलब कि वो फिर से वो ठीक नहीं होते हैं। हार्ट में हमारी 3 मेजर आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं, जो कि हार्ट को पंपिंग में हेल्प करते हैं। होगा क्या, जब आपके किसी भी नस में ब्लॉकेज आ जाता है, तीनों में से किसी भी नस में ब्लॉकेज आएगा और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, आपको पेन सेंसेशन होगा। एक कॉन्ट्राडिक्टरी है डायबिटिक पेशेंट में। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, न्यूरोपैथी होती है, मतलब उसको पेन सेंसेशन, कभी देखोगे डायबिटिक पेशेंट पे घाव हो जाता है पैर में, जिसको डायबिटिक फुट बोलते हैं, उनको घाव होता है, आप उसमें ऑपरेशन कर दो, उसमें चोट लग जाती है, उनको पता नहीं चलता, वो एकदम इन्फेक्टेड हो जाता है, पता नहीं चलता। उसी तरीके से डायबिटिक नेफ्रोपैथी हार्ट में भी होता है, वहां भी पेन सेंसेशन नहीं होता। वहां पे क्या होगा, डायबिटिक पेशेंट जो सीवियर डायबिटिक है, वो क्या कंप्लेन करेंगे, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो रहा है, और गैस्ट्राइटिस की वो सारी दवाइयां ले लेंगे, इनो खा लेंगे, गैस की दवाई खा लेंगे, सारे होम रेमेडीज अपना लेंगे, फिर भी उनको गैस्ट्राइटिक रिलीफ नहीं होता। कई बार जैसे हमारे पास मरीज आते हैं, बोले सर बहुत गैस बन रहा है, क्या है सर, बीपी शुगर की दोनों दवाई खाते हैं, हम पहला ऑर्डर देते हैं क्या ईसीजी निकालो, वो हमसे लड़ भी जाते हैं, क्यों ईसीजी निकलवा रहा, फालतू का पैसा ले रहा आप मेरे से। बट दिस इज द मैंडेटरी टेस्ट। उसी जिस तरीके से ब्रेन में हम अगर 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं तो हम इंजेक्शन लगा सकते हैं, ठीक उसी तरीके से हार्ट अटैक में, क्योंकि इरिवर्सिबल होता है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट लोगे उतना फायदा आपके हार्ट मसल को और ब्रेन टिश्यूज को होगा। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट में फ्यू सेकेंड्स, एक्यूट स्ट्रोक और हार्ट अटैक, ये सारी चीजें मेडिकल है जहां पे आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, आपको वहां पहुंचना है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट कहाँ है, जहां पे आपको एक्ट करना है, आपको काम करना है और आपको इस लायक बनाना है कि मरीज अस्पताल पहुंचता है। तो सबसे पहले इसमें एक चेन ऑफ सर्वाइवल होता है। बेसिकली क्या है कि जैसे ही कोई आपके सामने अनरिस्पॉन्सिव होता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एम्बुलेंस के लिए कॉल करना है, इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट करना है आपको। दूसरा क्या करना है, आपको हाई क्वालिटी सीपीआर करना है। सीपीआर कैसे करते हैं, क्या रेशियो होगा, वो हम डमी लेके आए हैं, आपको बताएंगे। तीसरा डिफिब्रिलेशन, अभी आप जैसे निकलोगे ना एयरपोर्ट से तो एईडी रखा हुआ है, वहां पे एक बॉक्स बना हुआ है और एईडी रखा हुआ। मैक्सिमम एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इवन इन साउथ केरला में बसेस में एईडी रखना लोगों ने शुरू कर दिया, मतलब 30-35 हजार का एईडी होता है।
तो आप उस एडी से 30-35 हजार के एक इक्विपमेंट से आप किसी की जान बचा सकते हो। ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इसको बोलते हैं एडी को, तो वो अप्लाई करना। अगर मरीज रिस्पांस नहीं कर रहा, अभी हम क्या बात कर रहे थे, रिस्पांस कर रहा है कि नहीं कर रहा, अब मरीज आपका रिस्पांस नहीं कर रहा, 3 चीजें होती है बेसिकली, या तो उसकी सांस भी नहीं चल रही है और धड़कन भी बंद है, दूसरा धड़कन तो चल रही है बट सांस नहीं ले रहा है, तीसरा सांस भी चल रही है और धड़कन भी। तो बीइंग ए नॉन मेडिको ये बहुत टफ है कि आप डिसाइड कर लो कि किसकी धड़कन चल रही है, किसकी सांस चल नहीं रही है। तो हम एकदम एक लाइन में बताते हैं कि अगर आपको अनरिस्पॉन्सिव मरीज मिल रहा है, आपके सामने कोई अनरिस्पॉन्सिव होता है, तो आप धड़कन और सांस की टेंशन मत करो, आप तुरंत सीपीआर शुरू कर दो। बहुत होगा आप सीपीआर शुरू करोगे, मरीज का धड़कन होगा, सांस होगा और वो जग जाएगा, यही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसका ब्लड सर्कुलेशन जो ब्रेन में जाना चाहिए वो नहीं जाएगा और हम मरीज को खो देंगे। अब सीपीआर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंप्रेशन करते हैं, हमारा टारगेट क्या रहता है, कंप्रेशन, उसके बाद ब्रीथ देना, उसके बाद हम वेंटिलेशन की बात करते हैं, मतलब एयरवे को ठीक करना और उसको ब्रीथ देना। तो कंप्रेशन कैसे करना है, किस जगह पे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पल्स चेक करने नहीं आता है तो आप पल्स चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करो, आप सीपीआर स्टार्ट करो। अगर आपको पल्स चेक करने आता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या आपने बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ले रखी है, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को एक्सपोज करना है। फीमेल पेशेंट है तो आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। मेल पेशेंट को एक्सपोज करके सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसका कैरोटिड पल्स, हम सेंट्रल पल्स चेक करते हैं कि पल्स है कि नहीं। तो पल्स कैसे चेक करेंगे, जैसे ही आप ऐसे सर को करोगे, ऊपर से आओगे, पहला प्रोमिनेंस देखोगे, फर्स्ट प्रोमिनेंस और फर्स्ट ग्रुप, ऊपर से आओगे, फर्स्ट प्रोमिनेंस, फर्स्ट ग्रुप, जैसे आप ये हाथ रखोगे ना, सबको अपना कैरोटिड पल्स फील होगा। नहीं फील हो रहा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करो, फील हो जाएगा। आप ये देखो, मैं जब कैरोटिड पल्स चेक कर रहा हूँ तो मेरी जो आई है ना, वो पेशेंट के चेस्ट पे है। क्यों चेस्ट पे है, हम देख रहे हैं कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा। सांस, आप लोग बोलते हैं कि नाक के पास हाथ लगाओ, हवा आ रहा है क्या समझ में आएगा, पेपर लगाओ, पेपर उड़ रहा है क्या समझ में आएगा, या स्टील का कोई बर्तन लगाओ तो फॉगिंग हो रही है तो समझ में आएगा। ऑल दीज आर एब्सोल्यूट इनएडिकेटेड थिंग्स। अगर बारिश होगी तो कैसे फॉगिंग होगा, अगर हवा चल रहा तो फिर कोई भी चीज लगाओगे वो उड़ना शुरू हो जाएगा, आपको सेंसेशन नहीं पता चलेगा। हमको क्या करना है, मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसके लिए हमको उसके चेस्ट राइज को देखना है। छाती फूल रही है तो हम देखना है कि छाती का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा चीज, आप सीपीआर करते वक्त आपका हाथ का पोजीशन ऐसे होना चाहिए, ये इस तरीके से आपका हाथ का पोजीशन होना चाहिए कि आप ये जो दोनों है ना, एक हाथ के ऊपर दूसरी हाथ रख करके इंटरलॉक करोगे और इंटरलॉक करके ये पोजीशन इस तरीके से आपकी केवनी सीधी, एल्बो सीधी होनी चाहिए और प्रेशर जो आप दोगे ना, प्रेशर सीधा बैक से नीचे आना चाहिए। उसके बाद जब मैं सीपीआर करूंगा तो सीपीआर का पोजीशन ये रहेगा कि पेशेंट के ब्रेस्ट बोन, इसको बीच की जो हड्डी बोलते हैं ना, इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि हम पूरा का पूरा हाथ रख देते हैं, तो हाथ रखने से क्या होगा, जो प्रेशर है वो डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रेस्ट बोन पे प्रेशर नहीं जाएगा। अगर आप पूरा हाथ रख करके ऐसे अगर सीपीआर करते हो, हम ब्रेस्ट बोन पे रख करके क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे तो प्रेशर क्या होगा, ब्रेस्ट बोन पे जाएगा और ब्रेस्ट बोन के दोनों तरफ क्या है, रिब केज है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे प्रेशर डालोगे तो रिब पे प्रेशर पड़ेगा और उससे क्या होगा, रिब्स आपका डैमेज होगा और रिब्स डैमेज होगा तो क्या होगा, वो लंग को इंजुरी करेगा। लंग को इंजुरी करेगा तो क्या होगा, आप उसको बचाने की बजाय और आप उसको लाइफ उसकी इन डेंजर डालो। बट हमारा टारगेट ये रहता है, आप किसी भी तरीके से, भले उसका रिस्क टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आप सीपीआर स्टार्ट कर दो। अब सीपीआर करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। एटलीस्ट डेप्थ जो हम कंप्रेशन का कर रहे हैं वो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, एटलीस्ट, मतलब उसकी गहराई जो हम दबा रहे हैं वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। और कितना फास्ट, इतना फास्ट कि आप 1 मिनट में 100 से 120 बार कर सकते हो कंप्रेशन, 1 मिनट में 100 से 120 बार। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको आपको पूरा प्रेस करके नहीं रखना। क्या करना है आपको, जैसे मान लो ये मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, इस तरीके से सीपीआर कर रहा हूँ, ठीक है,
तो हम सीपीआर कर रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर डेप्थ होगा और इसका स्पीड होगा 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट। अब इसमें क्या करना है आपको, इसको प्रॉपर रिक्वायर होने का मौका देना है। ऐसा नहीं कि ये प्रेस किए तो प्रेस किए रहे, इसको प्रॉपर रिक्वायर होने का मौका देना है। जैसे स्प्रिंग रहता है ना, अगर आप प्रॉपर रिक्वायरिंग का मौका नहीं दोगे तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर निकल नहीं पाएगा। जैसे पानी का पाइप होता है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रीदिंग। उसको सांस भी तो देना है, सांस कैसे दोगे, ऐसे एक हाथ से आपको क्या करना है, एक को टिल्ट करना है और जॉ को एलिवेट करना है। बेसिकली इस तरीके से करने का मकसद क्या हमारा, इससे क्या होगा, उसका जो टर्न फॉल होगा वो नहीं होगा और माउथ ओपन हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, दोनों नोज को पिंच कर देते हैं ताकि जो हम मुंह से हवा दें वो नाक से बाहर ना निकले। और या तो कोई बैरियर मेथड, अगर आप डायरेक्ट दे सकते हो, जैसे अपने घर के कोई लोग हैं तो हम डायरेक्ट भी देते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप हैंडकरचीफ और कई सारे जगह पे माउथ पीसेस रखे रहते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एईडी और माउथ पीस। तो हमको टारगेट क्या करना है कि जो ब्रीथ दे रहे हैं तो उसका चेस्ट राइज हो रहा कि नहीं हो रहा, मतलब उसकी छाती फूल रही है कि नहीं फूल रही है। अगर छाती नहीं फूल रही है इसका मतलब कि आप जो ब्रीथ दे रहे हो उसके छाती में नहीं जा रहा। तो हमारा फोकस क्या होगा, हम सांस देते देते नजर हमारी छाती पे रहनी चाहिए। तो 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देना आपको। हर 30 कंप्रेशन के बाद मरीज को 2 बार सांस देना है। अगर आप उसको सांस दे पा रहे हो तो, अगर नहीं दे पा रहे हो आप कंटिन्यूअस सीपीआर करते रहो। सांस देने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है कि अभी धड़कन चल रही है और पेशेंट सांस भी ले रहा है, फिर क्या करेंगे आप, उसको रिकवरी पोजीशन पे करेंगे। रिकवरी पोजीशन क्या होता है, अगर हम मान लो मेरा धड़कन भी चल रहा, मैं बेहोश हूँ और मेरी सांस भी चल रही है, अगर मैं ऐसे सीधा सोया हूँ तो क्या होगा, सबसे पहले कोई भी अगर अनकॉन्शियस पेशेंट होता है ना तो उसकी जीभ पीछे की तरफ गिरती है, टंग फॉल होता है। टंग फॉल होगा तो क्या होगा, जो सांस लेने वाली नली है वो ब्लॉक हो जाएगी और मरीज सांस नहीं ले पाएगा। अभी तो जिंदा है, क्या करना है, रिकवरी पोजीशन। रिकवरी पोजीशन क्या होता है, इस तरीके से हम रिकवरी पोजीशन करेंगे। अगर कोई पेशेंट आपके पास अनरिस्पॉन्सिव पड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके एक हाथ को इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्या करेंगे, उसके दूसरे हाथ को हमने क्या किया, इस तरीके से दूसरे कान के पास लेके। तीसरा पोजीशन क्या होगा, एक नी को बेंड करना है और थोड़ा सा झुकाना है। ये देखो, ये है और ये है। अब इससे क्या होगा कि पेशेंट का ये पोजीशन होता है और उसके बाद आप दोनों एल्बो को और नी को जब बेंड करोगे तो पेशेंट अपने आप रिकवरी पोजीशन में आएगा। और रिकवरी पोजीशन में आएगा तो आपका एक हाथ वैसे ही उसके मुंह के पास पड़ा हुआ कान पे रखे हो वो उसके हाथ में आ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और फॉल फ्रॉम हाइट, ऐसे केसेस में जो मैक्सिमम मॉर्टिलिटी मतलब मरीज की मृत्यु होती है उसका कारण सर्वाइकल इंजरी होता है। इवन बाइक में क्या होता है, हेलमेट पहने भी रहते हैं तो सर तो बच जाता है, फिर भी बोलते हैं कि यार हेलमेट पहना था, सर में कहीं चोट नहीं लगी, फिर भी मरीज की मृत्यु हो गई। तो कई बार क्या होता है, सर्वाइकल इंजरी होती है और सर्वाइकल इंजरी होने के कारण उसका स्पॉट डेथ होता है पेशेंट का। आप देखोगे बॉडी में कहीं कोई चोट नहीं है, सीने में कोई चोट नहीं है, पेट में कहीं चोट नहीं है, फिर भी मरीज को हम बचा नहीं पाते, उसमें सर्वाइकल इंजरी होती है। तो हमको सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सर्वाइकल स्टेबलाइजेशन करना उसके किसी भी मूवमेंट में। तो इसको स्टेबलाइज कैसे करेंगे, इस तरीके से दोनों हाथ से पकड़ेंगे और इस तरीके से फिर उसको रिकवरी पोजीशन में करेंगे। अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो उसको रिकवरी पोजीशन में 2 आदमी का हेल्प लगेगा। सबसे पहले हम सीन सेव करेगा, जहाँ पे हमने प्रोवाइड करना वाला है और सेफ्टी देखने के बाद हमने इसका रिस्पॉन्स चेक करेगा। रिस्पॉन्स कैसे चेक करेगा, उनको शोल्डर में हम टैप करेगा, आप ठीक है क्या, आप ठीक है क्या, आप ठीक है क्या, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तुरंत हमने किसी को हेल्प के लिए बुलाया। ठीक है, हेल्प के लिए बुलाने के बाद हमने उसका पल्स और रेस्पिरेशन दोनों चेक करें। हमारे पास 10 सेकंड्स का टाइम है पल्स चेक करने के लिए और रेस्पिरेशन देखने के लिए, तो हमने उसको काउंट कर दिया 1001, 1002, 1003 ऐसे सेम टाइम में, एक टाइम में पल्स, सेम टाइम में हमने रेस्पिरेशन भी चेक करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम आपके पास कितना है, सिर्फ 10 सेकंड। 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेना। अगर 10 सेकंड में आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, सीपीआर स्टार्ट कर देना। ये 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। सीपीआर करने के लिए हम हमारे हाथ को ऐसे बनाएगा,
मरीज का निप्पल का बीच में जो हड्डी है वहाँ पे हाथ रखेगा, हमारा पोजीशन एल्बो स्ट्रेट रहेगा और गर्दन स्ट्रेट रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देना है। अगर आपके पास ब्रीथ के लिए कोई मेथड नहीं है तो आप ब्रीथ मत दो, कंप्रेशन कंटिन्यू करते रहो। बट 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ देते हो तो हम उसको इफेक्टिव सीपीआर के रूप में लेते हैं, ताकि मरीज का कंप्रेशन भी हो रहा और उसको ब्रीथ भी मिल रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये कंप्रेशन कर रहे हैं ये देखो जो प्रेशर है ना, कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है और बॉडी हमेशा टच है पाम से, ऐसा नहीं कि वो उड़ जा रहा हिल जा रहा, लोग जगह फिक्स है। और जो प्रेशर है आप ये देखो कंधे से प्रेशर आना पूरा का पूरा एल्बो स्ट्रेट है और प्रेशर आपको बैक से जनरेट करना है, कमर से प्रेशर को जनरेट करना है, बॉडी गिरनी है, एल्बो और रिस्ट का मूवमेंट नहीं करना है। ठीक है, चलो कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो आप लोग में से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मतलब जो का पार्ट इट्स अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर। अगर आप करते हो ना तो इवन चोट भी करता है तो आप बचा सकते हो जान। और कई बार क्या होता है ना कि हार्ट अटैक पेशेंट में जैसी कंप्रेशन शुरू करते हैं, जैसी बेसिकली ये कोई क्लॉट फंसा हुआ है, मान लो किसी नस में क्लॉट फंसा हुआ, आपने कंप्रेशन शुरू किया और क्लॉट आगे निकल गया, मरीज की जान बच जाएगी। Well, take your heart, count the time of life until it is over. You should have thought about your problems wouldn't go away by themselves. लेमैन को बोलते हैं आप किसी भी तरीके से सीपीआर करो, मरीज मर रहा है, आपके कंप्रेशन में उसकी जान बच जाएगी, तो हड्डी टूटे या कुछ भी टूटे, एक बार जान बच गई तो फिर हम बचा लेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। इनिशियल हमारा टारगेट जान बचाना है। सो गाइस फिलहाल अभी अपना ये सहयोग की तरफ से ऑर्गन डोनेशन कैंप एंड हो चुका है एंड यहाँ पे रामकृष्ण हॉस्पिटल से डॉक्टर संतोष सर आए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं थोड़ा ऑर्गन डोनेशन के बारे में एंड लाइफ सपोर्ट के बारे में। जो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था बहुत ज़्यादा अच्छा था। सो सर थोड़ा सा इंटरव्यू। सो हमारे साथ फिलहाल है अभी डॉक्टर संतोष सर फ्रॉम रामकृष्ण हॉस्पिटल। सर आपने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ज़्यादा अच्छा था। सर ये ऑर्गन डोनेशन का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं आप? बेसिकली ऑर्गन डोनेशन हम जैसे आप जानते हैं कि ऑर्गन डोनेशन से बहुत सारे लाइफ्स को बचा सकते हैं। तो ऑर्गन डोनेशन का बेसिक फंडा यही है कि हम जो पेशेंट ब्रेन डेड हो जाते हैं, जिनके ऑर्गन को आप पेशेंट जैसे हम बोलते हैं उसको कैडेवरिक ट्रांसप्लांट, तो ब्रेन डेड पेशेंट्स में जिसके GCS 5 से नीचे हैं हम एसेस करते हैं और वो जो कि उनको हम बचा नहीं पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, तो सही समय पर हम ऑर्गन डोनेशन के लिए उनको प्रेरित कर पाते हैं और ऑर्गन डोनेशन करते हैं, तो हम उनसे कई सारी लाइफ्स को बचा सकते हैं। तो सर ये ब्रेन डेड जो आपने कहा वर्ड, वो पेशेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? वो बेसिकली वो मेडिकल की चीज़ें हैं और वो मरीज जो अस्पताल में भर्ती रहता है तो वो डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि डिसाइड करती है कि ये मरीज ब्रेन डेड है और क्या ये मरीज के और भी वाइटल्स पैरामीटर्स जो हैं वो डोनेशन के लिए उपलब्ध रहेंगे या कैसा सिचुएशन है उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो डॉक्टर्स की टीम डिसाइड करके तो वो डिसाइड करते हैं कि वो ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। एंड सर ऑर्गन डोनेशन का जो प्लेज वगैरह के बारे में बात हो रहा था वो उसका थोड़ा बताएंगे? बेसिकली हम चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन की बात चल रहा है, अभी हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों ने ऑर्गन डोनेशन किया और जिससे कि बहुत सारे लाइफ्स को बचाया जा सके, तो हम चाहते हैं कि सब लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर करें और भगवान न करें, बट अगर किसी की मदद कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू सर आपके टाइम के लिए, वैल्यूएबल टाइम। एंड NIT रायपुर में ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, सो या थैंक यू। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे जो कैंप था बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल निकल के आया। सहयोग ग्रुप ने, सहयोग क्लब ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था एंड प्रेरणा ब्लाइंड स्कूल से, यहाँ पे एक ब्लाइंड स्कूल रायपुर में, वहाँ से भी कुछ बच्चे आए हुए थे जिन्होंने स्टार्टिंग में एक सिंगिंग परफॉर्मेंस दिया था। लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा एक प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पे दिया गया। अब CPR कैसे दिया जाता है, किसी को अगर रोड पे इंजरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो उसे किस तरीके से सब सेव करना है टाइम बचाते हुए, ये सब चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया है डॉक्टर्स ने यहाँ पे NIT रायपुर में। सो इतना ही था यार इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट व्लॉग में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will take your heart, count the time of life until it is